Okay, so this is what the question we were going through in our chapter number 4, that is Sale of Goods Act. Now, this particular question is related to distinction between sale and agreement to sale. As far as the term sale is concerned, sale means a transaction where both the parties, that is buyer and seller, have already fulfilled their obligations and it's a perfect contract, right? It is an executed contract. Whereas agreement to sale is just an agreement between buyer and seller where both the parties are yet to complete their performances. Now, based on these two situations, the court is giving the judgment or the court is deciding that what kind of punishments or the rewards can be given, right? So, under this distinction, we have learned that whenever the sale is happening, the ownership is getting transferred from seller to buyer, whereas in agreement to sale, ownership is still in the hands of the seller. That means if anything is happening with the goods or any loss is happening, that loss should be borne by the owner only because the risk already have been transferred. So in case of sale, the buyer is responsible to bear all the losses because the ownership already has been transferred, the risk already has been transferred. Whereas in agreement to sale, all the risk with the goods are to be borne or to be borne bear by the seller. This is what we have learned. And based on that, we have understood even the remedy against seller, remedy against buyer. That means if seller is doing no some kind of breach of promises or any kind of thing which is harmful for the buyer, then what buyer can do against the seller? But sometimes even buyer is also committing some errors, committing some actions which may be which may be responsible to bring the seller to suffer from losses. So what kind of remedy seller is having against buyer, even this is also we have understood. And then we have understood regarding right in rem or in personam. As far as term rem is concerned, over here the person who's having the right is having the right against whole world. That means nobody can stop him. We have taken one example where A was a seller, B was a buyer, and C was a third party. Now in this case what has happened, A have promised B that he will be selling goods to B, right? Now B has even given the advance money to A. A एक सेलर है जिसने बी को प्रॉमिस किया कि वो गुड्स उसे बेचेगा और बी ने एडवांस में ही पैसे ए को दे दी। तो ये जो ट्रांजैक्शन है ये सेल की ट्रांजैक्शन है क्योंकि एक पार्टी ने अपना ऑब्लिगेशंस पूरा कर लिया। बायर का काम क्या है, बायर की ऑब्लिगेशन क्या है, गुड्स के अगेंस्ट में पैसे दे देना। तो एक पार्टी ने अगर अपना ऑब्लिगेशन पूरा कर लिया है तो ये ट्रांजैक्शन एग्रीमेंट तो सेल नहीं है, सेल हो गया। मतलब जो गुड्स की प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी बी के नाम पे आ गई। अब कुछ दिनों के बाद जब गुड्स अवेलेबल हो गए सेलर के पास, तो एक मिस्टर सी जो थर्ड पार्टी है, जो बी को भी नहीं जानता और सी भी नहीं जान बी भी सी को नहीं जानता है, सी ए के पास आता है और वही गुड्स मांगता है जो बी के लिए ऑलरेडी स्टोर में अवेलेबल किए गए और बी ने ऑलरेडी उसके पैसे भी दे दिए। नाउ सी इज ऑफरिंग मोर मनी टू ए and he is saying that it is very urgent for me to get those goods। और ए क्या करता है, लालच में आके, क्योंकि उसे ज्यादा पैसे मिल रहे हैं, भले ही उसने बी से पैसे ले लिए, उसने क्या किया, सी को वो चीजें बेच दी। अब यह नुकसान बी का है ना। अब बी वापस से कुछ समय के बाद दुकान में आता है और ए को कहता है कि मेरी गुड्स, क्योंकि मैंने तो तुम्हें एडवांस दिया था। तो ए उसे क्या कहता है, यार एक ना अर्जेंट काम हो गया और एक कस्टमर आ गया और उससे बहुत ज्यादा अर्जेंट जरूरत थी तो मैंने उससे दे दिए। अब तुम्हारे लिए ना कल का लिए वेट करो, कल तक आ जाएंगी गुड्स। तो बी को गुस्सा आ गया। B will say that I have already paid you advance. The goods, whatever you have made it available in the store, were belonging to me because already I have paid you money. Then how can you give the goods to another person? You are not supposed to sell the goods to another person because those goods were belonging to me only. He is right because the transaction of sale had happened. Now, in this case, B can go to the court against the seller, against A,
not only against A, but he can bring even C also in the court. C के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है, C को तो देखा भी नहीं, कभी जाना भी नहीं, पर B जब कोर्ट में जाएगा तब C को भी घसीट के लेके जाएगा और कोर्ट वो अलाउ भी करेगा. दैट इज रेम, REM, रेम. Because in sale, the rights have been already transferred in the name of buyer. So buyer is having right to file a case against all the parties who are involved in his loss. क्योंकि उसे वो चीजें नहीं मिली तो हो सकता है उसका बड़ा कुछ लॉस हो गया होगा, राइट, तभी तो वो कोर्ट में गया. तो उसको बोलते हैं रेम. वेयर एज अगर ये केस को हम लोग उल्टा कर देते हैं, यहाँ पे ए ने बी को प्रॉमिस किया कि भाई जैसे गुड्स आ जाएंगे मैं तेरे लिए रख रहा हूं, तुझे मैं दे दूंगा. बी ने कुछ एडवांस नहीं दिया. पहले वाले केस में बी ने एडवांस दे दिया था, अब यहाँ पे बी ने कुछ एडवांस नहीं दिया, तो ये सेल नहीं होगा, एग्रीमेंट टू सेल होगा. और एग्रीमेंट टू सेल में क्या होता है, प्रॉपर्टी या जो रिस्क रहती है या जो ओनरशिप रहता है वो तब ट्रांसफर होगा जब दोनों पार्टीज अपने ऑब्लिगेशंस पूरे करेंगे. यहाँ पे तो पूरे नहीं हुए, तो ये एग्रीमेंट टू सेल है. और एग्रीमेंट टू सेल है मतलब ओनरशिप किसके हाथ में है, अभी भी सेलर के हाथ में ही, बायर के पास नहीं गया. सेल में ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, एग्रीमेंट टू सेल में ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ. ये इनकी बातचीत हो गई. अब गुड्स आ गई दुकान में, अब आया मिस्टर सी. सी कहता है कि भाई मुझे ना ये गुड्स की बहुत जरूरत है, चाहे पर ज्यादा ज्यादा पैसे ले लो पर मुझे ये चीजें दे दो. अब यहाँ पे ए उसे चीजें दे सकता है, ए को कोई भी बंदिश नहीं है, क्योंकि ए के पास ही है ना प्रॉपर्टी, अभी भी ओनरशिप तो ए के पास ही है, क्योंकि एग्रीमेंट टू सेल है, वो बेच सकता है ना, डिसीजन ले सकता है. अब ये तो चीजें उसने सी को बेच दी. अब बी आया थोड़ी देर के बाद, वो बोला अरे यार तुमने तो प्रॉमिस किया था कि मुझे दोगे, अभी तुम्हारे प्रॉमिस के बेस पे मैंने किसी और को प्रॉमिस कर दिया, वहां पे तो मेरा बड़ा हंगामा हो जाएगा, बड़ा नुकसान हो जाएगा. तो अभी यहाँ पे बी क्या कर सकता है, केस फाइल कर सकता है, पर सिर्फ ए के अगेंस्ट में, सी को टच भी नहीं कर सकता. इसको बोलते हैं पर्सोनेम. दैट मीन्स यू कैन फाइल अ केस अगेंस्ट अ पर्सन, पर्सनल, और यू कैन से दैट, राइट. यू कैन नॉट गो अगेंस्ट होल वर्ल्ड. सी को आप घसीट के नहीं लेके जा सकते कोर्ट में, वेयर सेल में लेके जा सकते. तो यहाँ पे दिया हुआ है, एन एग्रीमेंट टू सेल क्रिएट्स द राइट इन पर्सोनेम, दैट इज द राइट ओनली अगेंस्ट द पर्सन फॉर एनी डिफॉल्ट इन परफॉर्मिंग हिज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट. दोनों पार्टीज में से अगर कोई एक पार्टी अपना परफॉर्मेंस देने से मना कर दिया या अपना ऑब्लिगेशन से ब्रीच कर दिया, तो दूसरी पार्टी सिर्फ उसी के अगेंस्ट में कोर्ट में जा सकती है, किसी और के अगेंस्ट नहीं. भले उसके लिए और भी लोग जिम्मेदार रहेंगे, पर कानून उसे अधिकार नहीं देता है. इज इट क्लियर? Is this point clear to you now? Can you put yes in the chat box if you are clear about this? Because this is important thing, and this can be asked in the form of MCQs, alag-alag situation. Okay, I'm getting many answers in the chat box. Okay. So the next point is over here. Let me select the. Okay. Now the next is risk of destruction of goods. As far as term destruction is concerned, destruction means when the goods are getting spoiled or destroyed in between. When the goods are getting destroyed, what will be the situation? First, we are going to discuss regarding sale. अगर sale है तो और destruction हो गया तो क्या क्या उसका consequence होगा? Here it is given, in sale, if the goods are accidentally destroyed, the loss will have to be borne by the buyer, even if the possession is with the seller, because ownership has passed to the buyer. Now, before explaining the meaning of these lines, I'm just giving you one example. Let us say I have bought 100 textbooks of business law for you people. I came across one textbook written by one particular author. I liked that book very much, and the cost of that book is only rupees 50, which can be used for both the semesters, semester 3 as well as semester 4. So 50 rupees कोई बड़ी बात नहीं है. And I asked you, you also said that sir आप हमारे लिए भी वो किताब मंगवा दीजिए. We will pay rupees 50 and we will take that copy of the book. Okay, so this is how I went to that particular shop. I told him that I want at least 150 copies of that textbook because 150 students are ready to take that book.
and that book is very you can say highly in demand. So what I have done, I have paid full cash to him of 150 books at the rate of 50. I have given the money to him, and he said that, sir, the books are going to arrive only in the next week. The moment books will come, I will give it to you. I said okay, but I told him, no, you keep the books in the 10 packages, because it would be easy for the persons to carry that. 150 किताबें एक साथ तो ले नहीं जा सकते हैं ना, तो आप क्या करो, 10-10 के 15 ऐसे बॉक्सेस बना दो, तो मैं 15 स्टूडेंट्स को लेकर आ जाऊंगा, और हम लोग उसको लेके गाड़ी में लेके जाएंगे। तो उसने क्या किया, किताबें जैसे आ गई उसने बना के रखा और मुझे कॉल किया, सर योर बुक्स हैव अराइव्ड, व्हेन यू आर गोइंग टू कम टू टेक दैट बुक्स। मैंने कहा कि आज तो बहुत बारिश हो रही है, आज तो मैं नहीं आ सकता हूँ, पर कल आ जाता हूँ मैं तुम्हारी दुकान में और लेके जाता हूँ, क्योंकि मुझे बच्चों के साथ भी कोऑर्डिनेट। नाउ हियर व्हाट हैड हैपेंड, अचानक से उसी रात को एक बारिश तेज था, तो उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिकल जो ये रहते हैं ट्रांसफार्मर और एनीथिंग हैड हैपेंड विद द शॉप, और शॉर्ट सर्किट की वजह से दुकान में आग लग गई। और दुकान में आग ऐसे हिस्से में लगी जहां पे हमारी किताबें पड़ी हुई थी, बाकी कुछ नहीं। राइट, हमारी जो 150 किताबें थी वहीं पे पड़ी हुई थी और वहीं पे आग लग गई, फायर हो गया पूरा, किताबें पूरी जल गई। दूसरे दिन हम लोग गए वो किताबें लेने के लिए बच्चों के साथ, तो दुकान वाला कहता है कि सर आपको कल फोन किया था, आप नहीं आए, अभी देखो आग लग गई रात को और ये किताबें आपकी सारी जल गई हैं। तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्या हमें हमारे किताबों के पैसे वापस लेने चाहिए, क्या हम वो कर सकते हैं, या चुपचाप से शांति से वापस आ जाएंगे कि चलो हो गया जो हमारे नसीब में था, नुकसान हो गया, अभी हमें ही बेयर करना है। व्हाट वी शुड डू अकॉर्डिंग टू योर एक्सपीरियंस, इफ यू आर एट माई प्लेस, व्हाट वुड यू डू? वुड यू आस्क फॉर मनी बैक? कि नुकसान तो वहां पे हुआ, उसने तो चीजें मुझे दी नहीं थी ना, चीजें तो उसके पास ही पड़ी, उसके पोजीशन में, उसकी दुकान में पड़ी हुई हैं, तो पैसे लेने चाहिए। ओके, काजल इज सेइंग दैट वी हैव टू आस्क फॉर मनी बैक। व्हाट अबाउट अदर्स, व्हाट डू यू फील दैट? अगर इस तरह से कोई चीज हो गई आपके पर्सनल चीजों के साथ हो गई, ओके, आपकी चीजें मंगवा के रखी गई वहां पे दुकान में, और दूसरे दिन जब आप गए तो बोल रहा है कि चोरी हो गया सर, एक्सीडेंट हो गया, छत गिर गई, आपका ये सामान टूट गया, तो आप चुपचाप से वापस आ जाएंगे मुंह लटका के हमारा नसीब ही खराब है, या झगड़ा करेंगे कि हमें हमारे पैसे दे दो, क्योंकि नुकसान तो तुम्हारे दुकान में हुआ, हमारे घर में तो नहीं हुआ, अभी तक तो आपने दिया नहीं था। ओके, प्रेरणा इज ऑल्सो सेइंग दैट वी हैव टू आस्क फॉर मनी बैक। ओके, मनी लेना चाहिए। आई एम गेटिंग इवन direct messages also are coming that we have to ask for money back. Now listen carefully. Again, I am reading the sentence over here. It is given that in sale. सेल का मतलब क्या है, हम लोग बार बार रिपीट कर रहे हैं। सेल मतलब जहां पे या तो दोनों पार्टीज ने अपना ऑब्लिगेशंस पूरा कर लिया, या तो किसी एक पार्टी ने कम से कम किया हो। बायर और सेलर जब ये दोनों ही अपने ऑब्लिगेशंस को पूरा कर लेते हैं तो सेल होता है। पर ऐसा भी नहीं, अगर किसी एक पार्टी ने अपना प्रॉमिस पूरा कर दिया है और दूसरे ने अभी तक नहीं है, तो भी वो सेल है। अब जो एग्जांपल मैंने दिया उसमें क्या किया, मैंने पूरा एडवांस दे दिया ना, 150 एट द रेट ऑफ 50, पूरा एडवांस दे दिया, तो ये सेल हो गई। सेल हो गई, उसके आगे क्या दिया है, इफ द गुड्स आर एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉयड। अब वो आग उसने जानबूझ के तो नहीं लगाई, राइट, वो एक्सीडेंट ही था, शॉर्ट सर्किट हो गया, किसी का बस तो नहीं चलता, एक्सीडेंटली हो गया। द लॉस विल हैव टू बी बोर्न बाय द बायर, वो बायर को ही लेना पड़ेगा, इवन इफ द पोजीशन इज विद द सेलर। ये केस में पोजीशन सेलर के पास ही था ना, चीजें कब्जे में किसके थी, सेलर के कब्जे में थी, तो भी वो नुकसान बायर को ही भरना पड़ेगा। क्यों भरना पड़ेगा भाई? क्योंकि ओनरशिप पास हो गई, बिकॉज ओनरशिप हैज पास्ड टू द बायर। वो ओनरशिप हो गई ना, आपने जब पैसे दे दिए तो ओनरशिप आपके ऊपर आ गई। तो अगर सेल का सिचुएशन है और एक्सीडेंटली चीजें खराब हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय हो जाती हैं, तो उसका जिम्मेदार कौन रहेगा? बायर ही रहेगा। वो तो ये मैं आपको बोल रहा था ना, मुंह लटका के आ जाएंगे कि हमारे नसीब ही ऐसे हैं, तो वही करना पड़ेगा, क्योंकि आपको कानून ने और कोई राइट नहीं दिया है। राइट, क्योंकि आपको ओनरशिप ट्रांसफर करते तो आपको यहाँ पे राइट्स भी दिए थे ना, कि आप झगड़ा करके कोर्ट में भी जा रहे हैं,
और सी को भी कोर्ट में लेके, इतने सब आपको राइट्स दे देगा कानून, तो थोड़ी बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटीज पे तो देगा ना, तो ये आपकी रेस्पॉन्सिबिलिटी है। सो इफ एनीथिंग इज हैपनिंग एक्सीडेंटली, नॉट इंटेंशनली, अगर इंटेंशनली किया है आपने, अगर कोर्ट में प्रूव कर दिया कि सेलर ने जानबूझ के वो किया, आपका नुकसान किया, तो आपको पैसे भर के देगा। लेकिन अगर वो एक्सीडेंटली हो गया तो फिर वो क्या करेगा, कोर्ट भी आपको सपोर्ट नहीं करेगा, वो आपको लॉस बेयर करना है, राइट। तो ये हो गई सेल की सिचुएशन, आपको ये समझ आ गई सेल की सिचुएशन, राइट। आप पैसे वापस नहीं ले सकते हैं क्योंकि एक्सीडेंटली डिस्ट्रॉय हुआ और आप ऑलरेडी आपने सेल की ट्रांजेक्शन कर ली है। ओके, नाउ अब भी हम लोग बात कर रहे हैं एग्रीमेंट टू सेल। वहां पे क्या होता है, in an agreement to sale, if the goods are accidentally destroyed, the loss will be that of the seller, even if possession of the goods are with the buyer, because the ownership has not passed to the buyer। कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग चीजें उधार पे खरीद के आ जाते हैं और हम लोग क्या बोलते हैं कि उसको पैसा जो है धीरे धीरे करके आपको देंगे, इंस्टॉलमेंट में देंगे। तो जब तक आप सारे इंस्टॉलमेंट पे नहीं करते हो तब तक आप उसके ओनर नहीं बनते। और अगर उस दौरान उस पर्टिकुलर गुड्स के साथ कुछ एक्सीडेंट हो गया, चोरी हो गया या खराब हो गया, कुछ भी हो गया, तो बायर उसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा, सेलर को ही जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अगर मैंने कार खरीदा है और लोन पे खरीदा, ईएमआई पे कर रहा हूँ, और अचानक से कार में आग लग गई, होता है ना कई बार ऐसा, इंजन में जो है वो मतलब चीजें ठीक नहीं होती हैं, तो वो अपने आप ही फायर कैच कर लेता है और कार ब्लास्ट भी हो जाती है। तो अगर इस तरह से कुछ हुआ तो बायर के ऊपर कोई नहीं आएगा नुकसान, वो सेलर का नुकसान है, क्योंकि ओनरशिप ट्रांसफर नहीं हुआ, भले ही पोजीशन बायर के हाथ में था। यहाँ पे दिया भी हुआ है, द लॉस विल बी दैट ऑफ द सेलर इवन इफ द पोजीशन ऑफ द गुड्स आर विद द बायर। ये जो केस मैंने अभी बताया, इसमें पोजीशन तो बायर के हाथ में ना, कार का, वही चला रहा है, वही यूज कर रहा है, और फिर एक्सीडेंटली उसका नुकसान हो गया, तो फिर सेलर उसका जो नुकसान है वो भरेगा, बायर को कुछ नहीं करना, क्योंकि ये एग्रीमेंट टू सेल है। ये दो अलग अलग सिचुएशंस हैं, सेल की सिचुएशन अलग है, एग्रीमेंट टू सेल की सिचुएशन अलग है, और दो अलग अलग सिचुएशन में नुकसान भी अलग अलग लोगों को ही भरना पड़े। सो ये हो गया हमारा रिस्क ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ द गुड्स, ये हो गई हमारी डिस्टिंक्शन की पॉइंट। देन द नेक्स्ट इज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर। अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या क्या सिचुएशंस आ जाती हैं, यहाँ पे दिया है, सेल का सिचुएशन है ये। इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट, द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी और रिसीवर बिकॉज ओनरशिप हैज ऑलरेडी पास टू द बायर। नाउ अगेन इसको समझने के लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट अस से मैंने अपनी किसी करीबी को, अपनी वाइफ को गिफ्ट देने के लिए मैंने एक ज्वेलरी आर्टिकल ऑर्डर किया एक ज्वेलर के पास। ओके, और क्योंकि वो ज्वेलर को पर्सनली हम जानते हैं, हमारी फैमिली को वो जानता है, तो मैंने उसके पूरे पैसे एडवांस दे दिए और डिजाइन पसंद करके उसको बोल दिया कि ये रेडी करके रखो, ये दिन पे मैं आके लेके जाऊंगा। वो गोल्डन ऑर्नामेंट्स उसने रेडी कर दिए उस पर्टिकुलर डे पे। अब वो इंसॉल्वेंट हो गए। इंसॉल्वेंट होने का मतलब क्या रहता है, उसने बहुत सारा लोन लिया हुआ है बाकी लोगों से और अभी वो पे नहीं कर पा रहा है, तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। तो इंसॉल्वेंट की सिचुएशन में क्या होता है, कानून क्या कहता है कि अगर कोई पर्सन इंसॉल्वेंट हो गया तो उसकी सारी प्रॉपर्टी को कोर्ट के पास लेके जाना है, कोर्ट उसे अपने कब्जे में ले लेगा और फिर उसे ऑक्शन में डाल देगा, नीलाम कर देगा, और बेचने के बाद जो भी पैसे आएंगे वो सारे जो भी क्रेडिटर्स हैं जिन्होंने उसे लोन दिया था उन सब में बांटा जाएगा, ये रूल रहता है। अब यहाँ पे क्या हो गया, अब मैंने सारे पैसे दे दिए ज्वेलरी के, अब वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, अब कोर्ट ने तो मेरी ज्वेलरी पे लेके गए, मेरी था ना, मैंने पैसे दिए थे तो मेरा ज्वेलरी हो गया ना, अब वो भी नीलामी में चला गया। तो क्या मुझे भरना चाहिए वो नुकसान, उसकी गलती की सजा मुझे क्यों मिलनी चाहिए? नहीं, मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेके जाऊंगा कोर्ट में, मैं बोलूंगा देखो सर मैंने पूरे पैसे दिए हुए हैं और ये सेल ट्रांजेक्शन है, क्योंकि मैंने अपनी ऑब्लिगेशंस पूरी कर ली एज अ बायर। आई वाज सपोज्ड टू पे फुल मनी व्हिच आई हैव पेड इन एडवांस, सो दैट ज्वेलरी बिलोंग्स टू मी, इट इज नॉट हिज प्रॉपर्टी, इट इज माय प्रॉपर्टी। तो वो क्या करेगा, जो ऑक्शनर है ना,
मतलब एक्चुअली क्या करते हैं, कोर्ट एक ऑक्शनियर को अपॉइंट करते हैं, ये गवर्नमेंट के ही लोग रहते हैं ताकि चीटिंग किसी के साथ ना हो। तो वो ऑक्शनियर मेरी सारा डॉक्यूमेंट्स ले लेगा, बोलेगा अरे नहीं नहीं ये तो इसका ही है, तो वो ज्वेलरी उठा के मुझे दे देगा, क्योंकि वो ज्वेलरी उस अभी ज्वेलर की नहीं रही, उस ओनर की नहीं रही, उसका ओनर, ये जो ज्वेलरी का जो बॉक्स है उसका ओनर मैं हूँ, तो मुझे लौटाया जाएगा क्योंकि वो सेल की ट्रांजेक्शन। इसके लिए यहाँ पे दिया हुआ है, इफ द सेलर बिकम्स इंसॉल्वेंट द बायर इज एंटाइटल्ड टू रिकवर द गुड्स फ्रॉम द ऑफिशियल असाइनी। जैसे मैंने बताया ना, ऑफिशियल असाइनी जो ऑक्शनर रहते हैं या रिसीवर या किसी और को वो चीजें मिली हैं, बिकॉज ओनरशिप हैज ऑलरेडी पास टू द बायर, क्योंकि बायर के पास ऑलरेडी ओनरशिप ट्रांसफर हो गया है, तो वो चीजें कोई और लेके ही नहीं जा सकता, ये बायर को ही मिलेंगी अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो गया तो ये तो हो गई सिचुएशन सेलर की, सेल की। बात समझ आई आपको? कैन यू पुट यस जस्ट टू मेक मी श्योर दैट यू आर अंडरस्टैंडिंग इट? इफ द ट्रांजेक्शन इज रिलेटेड टू सेल and if seller is becoming insolvent, then buyer can recover these goods either from the official assignee or from the receiver. Okay, I'm getting the answer. Yes, so you have understood that. तो ये तो हो गई हमारी सेल की सिचुएशन। पर सोचो सेल नहीं हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ, तो क्या हालत होगी? अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लोग। Here, if the seller becomes insolvent, the buyer shall have to prove the amount paid by him to the seller and he can only claim a rateable dividend. अगर सिर्फ एग्रीमेंट टू सेल हुआ, दैट मींस ओनरशिप तो ट्रांसफर नहीं हुआ, तो अगर बायर ने कुछ पैसे नहीं दिए, लेट अस से पार्ट पेमेंट कुछ भी नहीं किया, कुछ भी नहीं दिया, तो बात ही खत्म, वो इंस्टॉलमेंट हो गया, खत्म हो गई, ट्रांजेक्शन ही खत्म हो गई। बिकॉज वी हैव लर्नड, यू रिमेंबर दैट अंडर व्हाट सिचुएशंस द एग्रीमेंट बिकम्स वॉइड। उसमें एक सिचुएशन ये भी थी, इफ द वन पार्टी इज बिकमिंग इंसॉल्वेंट, अगर कोई एक पार्टी इंसॉल्वेंट बन जाता है तो एग्रीमेंट अपने आप ही अनएनफोर्सेबल हो जाता, एग्रीमेंट खत्म हो गया। यहाँ पे किसी का नुकसान नहीं हुआ, बायर ने ऑर्डर प्लेस किया था, चीजें आ गई, पर वो सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, उसकी वजह से क्या हो गया, सारे सेलर की जो प्रॉपर्टीज थी तो वो कोर्ट ने ले ली। अब बायर का तो कोई अधिकार ही नहीं है ना, क्योंकि ओनरशिप किसके पास था, सेलर के पास ही था, बायर के पास तो कुछ आया ही नहीं, तो वो एग्रीमेंट खत्म, बात खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर बायर ने कुछ थोड़ा बहुत एडवांस दिया था, तो पूरी तरीके से ओनर तो नहीं बना, उसका ओनर नहीं बना है, तो उस हालत में क्या होगा, वो बंदा बायर जो है वो कोर्ट में जाके प्रूव करेगा, डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दैट आई हैव पेड दिस पार्शियल अमाउंट, मैंने इसके ना थोड़े बहुत पैसे भरे थे, तो उसे रेटेबल डिविडेंड मिलेगा, मतलब जो उसका हिस्सा है, जो उसका हिस्सा बनता है वो मिलेगा। सपोज उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद कोर्ट ये तय करता है कि ओनली 50% मनी कैन बी गिवन, क्योंकि उसने लोन बहुत ज्यादा उठा लिया था, उसकी प्रॉपर्टी उतनी नहीं है, वो बेचने के बाद हम लोग सभी को 50-50% ही दे सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज रेटेबल डिविडेंड। तो उसे उतना ही मिलेगा, उस बायर को केवल 50% जो उसने पे किया हुआ है उतना ही अमाउंट उसे वापस मिलेगा। आई होप यू अंडरस्टूड द मीनिंग ऑफ रेटेबल डिविडेंड, क्योंकि यहाँ पे प्रॉपर्टी जो है पूरी तरीके से ट्रांसफर नहीं हुई थी, तो बायर को जितने उसने पैसे भरे हैं, अगर सपोज उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद सभी के लिए पैसे बच जाते हैं देने के लिए, तो कोर्ट पूरे पैसे दे देगा बायर को। लेकिन अगर नहीं मिला तो बाकी लोगों के जैसा प्रोपोर्शनेटली अमाउंट 25%, 50%, ये कोर्ट तय करता है कि कितना देना है, उतना ही अमाउंट उसे मिलेगा अगर एग्रीमेंट तो सेल है। और ये भी तभी जब थोड़ा बहुत एडवांस पे किया है ना, अगर नहीं भरा है, कुछ भी एडवांस नहीं भरा, तो बात ही खत्म, उसका तो कुछ ये भी नहीं होगा, कोई सुनवाई नहीं होगी उसके आगे। नाउ द लास्ट वन इज इन केस ऑफ इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। ये तो होगा सेलर अगर इंसॉल्वेंट हो गया तो क्या सिचुएशन है, पर कई बार ऐसा होता है कि बायर भी इंसॉल्वेंट हो जाते हैं, तो क्या कंडीशंस होती हैं? हियर इट इज गिवन इन सेल, इफ द बायर बिकम्स इंसॉल्वेंट, the seller must deliver the goods to the official assignee or receiver and will be entitled only to a rateable dividend for the price of the goods. Now here what is happening? Here the buyer has become insolvent. So seller have to deliver the goods to the assignee, that means उसका कोई तो official assignee होगा ना, वो उससे goods लेके वहां से रेटेबल अमाउंट ले सकता है कि ठीक है ये गुड्स उसने मेरे से खरीदे थे, इसका प्राइस इतना हो रहा है, तो अभी उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद जितना बाकी लोगों को दे रहा है उतना हिसाब मुझे भी दे, दैट इज रेटेबल डिविडेंड, राइट?
यहाँ पे एक्चुअली ये केस बहुत कम रेयरली आता है, बिकॉज ऑलरेडी इफ द बायर इज इंसॉल्वेंट, देन ट्रांजेक्शन अगर हो गया, दैट मीन्स बायर ने तो पैसे पूरे दे दिए होंगे ना शायद। तो बायर ने अगर पैसे दे दिए तो सेलर का तो कोई नुकसान ही नहीं हो रहा। लेकिन अगर सपोज बायर ने पैसे कम दिए थे तो भी सेलर अगर चाहे तो वो उसे वो दे देगा गुड्स, उसके ऑफिशियल असाइनी या रिसीवर को गुड्स दे देगा, और बोलेगा जो भी उसके हिस्से में आ रहा है रेटेबल डिविडेंड, उसकी प्रॉपर्टी बेचने के बाद उतने पैसे दे दो, वो इंटाइटल हो जाता है। लेकिन अगर एग्रीमेंट ही हुआ, मतलब सेल नहीं हुआ, सिर्फ एग्रीमेंट हुआ, तो क्या कंडीशन होगा? In an agreement to sale, if the buyer becomes insolvent, the seller may refuse to deliver the goods unless they are paid for. यहाँ पे तो बड़ी सरल सी बात है। अगर आपने सिर्फ प्रॉमिस किया था कि मैं आपको वो चीजें दे दूंगा, बायर ने भी आपको प्रॉमिस किया कि ठीक है चीजें दे दोगे तो मैं पैसे दे दूंगा, और जैसे ही वो ट्रांजेक्शन का दिन आया, पता चला कि बायर तो इंसॉल्वेंट हो गया, तो सेलर क्या करेगा? मना कर देगा कि नहीं नहीं, इतना नुकसान कौन करेगा, फ्री में थोड़ी ना कोई देगा। तो वो बन मतलब ही कैन रिफ्यूज, कोई उसको ये नहीं कर सकता। जनरली अगर सेलर रिफ्यूज करता है तो उसे कोर्ट में लेके जा सकते हैं, और अगर बायर ही इंसॉल्वेंट हो गया है तो ही कैन वेरी वेल रिफ्यूज एंड ही कैन से दैट नो, आई विल नॉट गिव यू अंटिल आई एम नॉट गेटिंग द मनी। आप जब तक मुझे पूरे पैसे नहीं दोगे मैं आपकी गुड्स नहीं दूंगा, आप कुछ भी करो। आप कोर्ट में भी नहीं जा सकेंगे सेलर के अगेंस्ट में। आपके पास खुद के पास पैसे ही नहीं है तो आप कोर्ट में कैसे जाएंगे? आप इंसॉल्वेंट हो गए हैं, बायर। ओके, so I hope you understood the meanings of these distinction points. So with this note, I just stop sharing the screen. And in our next lecture, we are going to understand regarding transfer of property in the goods. Okay.